أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر: وإنك لعلى خلق عظيم. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ تمام کو مسلمان بنایا اور ساتھ ہی ساتھ قرآن اور صحیح حدیث پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس رب العالمین کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص آخری نبی سید الانبیاء سید المرسلین امام الانبیاء ساقی کوثر شافع محشر تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بڑا بدنصیب ہے وہ انسان جس کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور ان پر درود نہ بھیجے۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ہماری بات چیت ہو رہی ہے، تو پچھلے جمعہ ہاشم کے تعلق سے اور ہاشم کا اصل نام کیا ہے اور ہاشم کو ہاشم کس لیے کہا گیا، مکے میں قحط پڑا تھا تو سیریا کو جا کر ہاشم جو ہے اونٹ وغیرہ لا کر، کھانے پینے کی چیزیں لا کر حاجیوں میں تقسیم کیے۔ اسی طریقے سے ہاشم کی کیا کیا خوبیاں تھیں مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھی پچھلے جمعہ۔ اس کے بعد ہاشم کا جو بیٹا شیبہ جس کا نام ہے، شیبہ اسے کئی کو واسطے بولتے تھے، وہ بھی میں آپ کے سامنے پچھلے جمعہ بتایا۔ اور عبد المطلب، شیبہ کا نام عبد المطلب کیسے پڑا وہ بھی میں آپ کے سامنے بتایا تھا کہ شیبہ کے ایک چچا مطلب تھے، وہ جو ہے مدینے سے ان کو مکہ لے کر آئے
तब जो है मक्के के लोग जो है अब्दुल मुत्तलिब कहकर पुकारे, तभी से शैबा का नाम अब्दुल मुत्तलिब हो गए। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा। जैसे ही हमारे जहनो दिमाग में अब्दुल मुत्तलिब का नाम आता है, शैबा का नाम आता है, तो इनकी जिंदगी के 3 बड़े वाक़ियात हमारे जहन में आते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि शैबा यानी अब्दुल मुत्तलिब ये दूसरों के मुकाबले में दीनदार थे और लोगों की खिदमत करना, लोगों की मदद करना, लोगों को देना इनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। इसीलिए इनको लोग पुकारते थे अल-फैज़ करके। अल-फैज़ के नाम से लोग इनको पुकारते थे, अब्दुल मुत्तलिब को। और ये रमजान के महीने में पूरा रमजान का महीना गारे हिरा में जाकर अल्लाह की इबादत करते थे, यानी अल्लाह को याद करना। और मुआशरे में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को कैसे खत्म करना और क्या क्या गलत चीजें राइज हैं उनको कैसा खत्म करना, इसके बारे में फिक्र उनको रहती थी अब्दुल मुत्तलिब शैबा को। और इससे पहले मैं बताया कि मक्के के रहवासी कौन थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी अम्मी हाजरा, और उनके साथ में एक कबीला आया था, कबीले जुरहुम। तो कबीले जुरहुम के लोगों पर कबीले खुज़ाआ के लोग जब हमला करे, तब जब कबीले जुरहुम के लोग मक्का से जा रहे थे, तब इन्हों क्या करे थे, जमजम का जो कुआं था, जमजम का जो पानी था, उसे क्या करे, जो भी साजो सामान आता सब उसमें डाल को जमजम के पानी कुछ बंद कर को जा छोड़े नहीं। कौन? कबीले जुरहुम के लोग। इससे पहले मैं बताया हूं। अब कबीले जुरहुम के लोग तब करे सो अब्दुल मुत्तलिब तक जमजम का नामो निशानी से नहीं आता। और अब यहां जैसा हमें बैठी, यहां कुआं था बोल को बोलेगा तो हमें मान सकती क्या? नहीं मान सकते। तो जमजम के कुएं के बारे में लोगों को वैसा भूल गए थे उन्होंने, यहां जमजम करने का नामो निशानी से नहीं आता उनको, वैसा भूल गए थे। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ एक बड़ा काम यह हुआ कि उन्होंने खुद बोलते हैं अब्दुल मुत्तलिब कि एक बार मैं सोया था, ख्वाब आया मुझे। ख्वाब में एकला आने वाला आया, आको बोला कि तैयबा है एक जगह पे, वो तैयबा को खोदो। मैं पूछा तैयबा क्या है वो? जवाब नहीं आया मुझे, गायब होगा। जो आको बोला था मेरे ख्वाब में उन गायब हुआ, दिखा से नहीं मुझे। बाद फर्स्ट दिन इतना हुआ। दूसरे दिन फिर ख्वाब उन्हें चाया, आको बोला बर्रा है या मजनूना है, उसे खोदो कर बोल को ख्वाब आया। मैं पूछा बर्रा या मजनूना ये क्या है, कहां है? फिर गायब, जवाब नहीं आया मुझे क्या भी। तीसरे दिन फिर ख्वाब में क्या, जमजम खोदो, जमजम को निकालो। मैं पूछा जमजम ये कहां है, तब मुझे जवाब आया, तीसरे दिन जवाब आया क्या कि जमजम एक पानी है और वो पानी ऐसा है जो कभी खत्म होने वाला नहीं खत्म होने वाला पानी हो, और खत्म होने की बात दूर की, कम भी नहीं होता वो पानी, वैसा पानी है। और वो जमजम जो है हाजिया के वास्ते बिल्कुल मुकम्मल तरीके से आराम देने वाला पानी। और उन्होंने पूछती
ठीक है, वो जमजम का पानी कहाँ है, वो कहाँ खोदना? तब उन्होंने बोलती ख्वाब में ऐसा ले कि उसे खोदने की निशानी वो कहाँ है जमजम का पानी का, तो तुम्हारे लोग जो कुर्बानियां देती पहले जमाने में, असनाफ और नाइला बोल को बुता हत्ते हो, वो कैसा हत्ते सब बोलते हो आगे इंशाल्लाह। वो दो बुता के नाम पर दरमियान में लोग क्या करते थे, कुर्बानियां देते थे अपने जानवरों की, दूसरे दूसरे सब चीजों की। तो ख्वाब में आने वाला क्या बोलता, वहां उसके पास ही है वो जमजम का पानी। एक पहली निशानी। दूसरी निशानी क्या है, तो वहां एक कौवा आता और वो कौवे के पवा और चोंच लाल कलर की है। पवा और चोंच क्या है, लाल कलर की, और परा जो है उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सफेदी है। और वो कौवा वहां उस जगह को आके बैठता नहीं, चुप हो खिकरते रहता हो, चोंच से खिकरते रहता हो जमीन। और दूसरी निशानी। तीसरी निशानी यह है कि वहां जो है चूंटियां के बिला बहुत है, वहां चूंटियां के घरा ही बहुत वहां। ये तीन चीजा ही देखो, तीन चीजा कहां रहती, वहां जमजम का पानी रहता, वहां खोदने चालू करो तुम। तीसरे दिन ये ख्वाब आने के बाद अब्दुल मुत्तलिब, शेबा जिनका नाम, इन्होंने क्या करते, उस टाइम में एक ही बेटा रहता उनको, अब्दुल मुत्तलिब को उस टाइम में एक ही बेटा। वो बेटे का नाम क्या, बड़े बेटे का नाम हारिस। क्या नाम, हारिस, बड़े बेटे का नाम हारिस। इन्हों क्या करती हैं, अपने बड़े बेटे को लेती, लेको बोलती कुदाल ले चलो खोदने का है, चलो। ख्वाब आया था मुझे 3 दिन। और यहां एक बात बोलना चाहता हूं मैं, रुका को थोड़ा ख्वाब के ताल्लुक से। एक ही ख्वाब को बार बार देखेगा तो वो ख्वाब के सच्चे होने की निशानी। एक ही ख्वाब को बार बार देखना वो ख्वाब के सच्चे होने की निशानी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित भी है, हमें सही सुनन वगैरह के अंदर, एक औरत जो है एक ही ख्वाब बार बार, उसका शौहर उसे छोड़कर तिजारत के वास्ते गया तो उन ख्वाब देखती थी, वो ख्वाब देखती थी। और हमेशा उन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आग बोलती थी, अल्लाह के नबी ये ख्वाब मैं देखूं बोल। वो ख्वाब की ताबीर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी बोलते थे। एक बार क्या हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में नहीं आते, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा थे, वो औरत अल्लाह के नबी के बारे में पूछे, अल्लाह के नबी नहीं क्या, नहीं बाहर गई, ठीक है बोल, वापस जाते रहते। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा क्या बोलती, मैं जबरदस्ती कर को खिकर खिकर को पूछी उसे नहीं बोले तक मैं छोड़ी नहीं, पूछते रहे, आखिरकार उन बोली मुझे ख्वाब, मैं उसे उल्टा बोल छोड़े। और नुकसान हुआ, उसके बच्चा इंतकाल हुआ, उसका शौहर बहुत, यानी कि जैसा उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा उल्टा बोले वैसा हुआ ख्वाब। तो मैं बताना ये चाहता हूँ, बहुत लंबा है वो, कि एक ही ख्वाब को बार बार देखना ये ख्वाब के सच्चे होने की निशानी। और एक ख्वाब को एक के अलावा 2-3 जने देखना या ज्यादा लोग एक के अलावा लोग देखना एक ही ख्वाब को, वो भी ख्वाब के सच्चे होने की निशानी। अब मिसाल के तौर पर अजान है, अजान शुरू के कभी कैसा ही मालूम है नहीं तुम ना, ख्वाब के जरिए से अजान शुरू हुई। सो हजरत जैद बिन अब्द रब्बी रजी अल्लाह अन्हु वो ख्वाब देखे, और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु भी वो सेम ख्वाब देखे। एक ही ख्वाब, लेकिन देखने वाले कितने जने, 2 जने। तो एक के अलावा जितने भी जने ख्वाब देखती वो ख्वाब देखना, तो ये भी ख्वाब के सच्चे होने की निशानी। तो बहरहाल मैं क्या बोल रहा था, अब्दुल मुत्तलिब इन्हों ख्वाब देखे 3 दिन तक। 3 दिन के बाद क्या करे, जो निशानियां बताए थे, बेटे को ले को, हारिस को ले को, अब्दुल मुत्तलिब जो है कुदाल लिए निकले तलाश करने के वास्ते, जगह ढूंढना। तो अब चुमटिया के घरा हैं वो जगह में, और तुम्हारे लोग कुर्बानियां देती वो जगह में, और कौवा आको बैठता, और कौवा कौन से कलर का है वो टाइप ढूंढने का। उस मुअर्रिखीन लिखती उस जमाने में वो कलर का वो एक ही कौवा हत्ता करते, और वो कौवा वहां आग बैठता था, कहते खिकरते बैठता था कहते। तो अब्दुल मुत्तलिब ढूंढने के बाद वो जगह मिलती उनको, बराबर वो 3-4 निशाने वहां से रहते।
इन्हों क्या करते हैं, कुरैश के बड़े बड़े लोगों को बोलती, अब्दुल मुत्तलिब देखो मुझे 3 दिन ख्वाब आया था, अब मैं जमजम का पानी खोदो बोल रहे हैं, उसके वास्ते ख्वाब में मैं खोदना करूं। अच्छी बात है। थोड़े कुरैश के लोग क्या करते हैं, कैसा करने वाले तुम्हें, हमें बुतांग की कुर्बानियां करती हैं, हमारे बुतांग जगह तुम्हें करने वाले क्या है, हमें करने नहीं देते। तो अब्दुल मुत्तलिब क्या करती हैं, हारिस को बेटा वो कुदाल मजे दो, कौन रोकते देखेंगे, मैं बड़ा हूं मजे से रुका दी तुम्हें बोल को गुस्से में क्या करती, कुदाल लेती हैं और खोदने का चालू करती, खोदने का चालू। जैसे जैसे खोदती उसके अंदर क्या है, खजाने निकलने चालू होती। जुरहुम के लोग, कबीले जुरहुम के लोग क्या करे थे, जो भी काबतुल्ला को या मक्के को जो भी सामान आता था, इन्हों तलवारा और जंग के जो है कपड़े और सुन्ना, ये सब जो है जाते जाते हमें सब हारी, जब जाते जाते एक ही रखना बोल को जमजम के कुएं में डाल को गए थे, इन्हों खोदने चालू करे तो वो पूरा खजाना निकलने का चालू हुआ। उसमें 2 सुन्ने के हिरना निकले। क्या निकले, 2 सुन्ने के हिरना और तलवारा और लोहे के कपड़े, जंग में पहनते सो कपड़े, ये सब निकलने लगे। निकलने के बाद इनका जोश और बढ़ने लगा और जमजम का पानी भी निकला, सुभान अल्लाह। निकलने के बाद क्या हुआ, 3 दिन तक ये कोशिश में लगे रहे उन्होंने। कितने दिन तक, 3 दिन तक ये कोशिश करते रहे। जब खजाना निकलने लगा, पानी निकल गया, तो अब्दुल मुत्तलिब जोर से अल्लाहु अकबर बोल को नारे लगाने चालू करे। जैसे ही नारे जोर से लगाने लगे, उधर कुरैश के लोग घाबरे पड़ गए, परेशान हो, आंख देखे क्या इनको मिला कि क्या नहीं, कि अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे बोल को आंख देखती, बड़ा खजाना है। कुरैश की आंखें लाल, इन्होंने एकलज कैसा खजाना लेने वाले, हमें भी इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलादी से, हमें भी उनके सगे छ बोल को इन्होंने झगड़ने का चालू करे उनसे। हो नहीं खोदने का नहीं, तुम्हें इतना रुका छोड़ो, अगर खोदेगा तो इसके अंदर हमारा भी आधा हिस्सा रहने वाला, हमें नहीं छोड़ने वाले। क्यों बोले तो हमें भी इस्माइल अलैहिस्सलाम के सगे छे, रिश्तेदारी छे। अब्दुल मुत्तलिब क्या बोले, शुरुआत में करे से, और पूरी मेहनत मेरी और मेरे बेटे की है, इसमें तुम्हारा क्या भी नहीं है, मैं तुम्हारा लेने देता नहीं। इन्हों कुरैश के लोग सुनने के वास्ते तैयार नहीं। उस टाइम में अब्दुल मुत्तलिब एक इरादा करे थे। क्या इरादा करे थे, अल्लाह अगर मुझे 10 बेटे दिया ग तो, कितने बेटे, 10 बेटे दिया ग तो, कई को बोले तो कुरैश के 100 जने आ रही, मैं मेरे बेटा 2 जने ही, मेरा साथ देने वाले कोई भी नहीं है। अगर अल्लाह मुझे ज्यादा बेटे कम से कम 10 दिया ग तो एक बेटे को अल्लाह के रास्ते में जबा कर को छोड़ दूं, कुर्बान देख छोड़ दूं। वो नियत करे थे अब्दुल मुत्तलिब उस टाइम में। तो बहरहाल कुरैश के लोग मानने के वास्ते तैयार नहीं थे। तो अब्दुल मुत्तलिब क्या बोले, ठीक है साहब, एक काम करेंगे, हमें लड़ने का झगड़ने का नको, किसी भी अगले को बीच में लेको फैसला करेंगे, हमें क्या होता देखेंगे। तुम्हारे हक में फैसला हुआ तो तुम्हें सब कब्जा कर लो, हमारे हक में फैसला हुआ तो हमें सब हमारे कब्जे में कर लेते। ठीक है बोल को क्या करे उन्होंने मालूम क्या, उस टाइम में एक औरत थी, औरत, वो औरत लोग क्या भी अगर कुरान अंदाजी करने का रहा, क्या भी पूछने का रहा, तो वो औरत के पास जाते थे। तो अब्दुल मुत्तलिब और कुरैश के लोग मिलकर वो औरत के पास गए, जाकर पूछा ऐसा ऐसा मसला है, क्या करना आप। तब उन्होंने, वो औरत क्या बोली, कुरान अंदाजी करो, चिट्ठियां उड़ो, चिट्ठियां, तीर को, पहले जमाने में क्या तीरा ले को कुरान अंदाजी करते थे। तो उसमें से 3 तीरा, एक तीर काबतुल्लाह के नाम पर और एक तीर जो है अब्दुल मुत्तलिब के नाम पर और एक तीर कुरैश के नाम पर, 3 तीरा बनाने का, 3 तीरा जो है उसकी कुरान अंदाजी करने का। उसमें से किसे क्या क्या आता उन्होंने छोड़ने का, वो उनके कब्जे में। तो 3 तीरा के जरिए से कुरान अंदाजी करे। कुरान अंदाजी करने में सुनने के जो 2 हिरन आते, तो सुनने के जो 2 हिरन खजाने में मिले थे, वो काबतुल्लाह के नाम पर है। बाकी का जो सारो सामान था वो अब्दुल मुत्तलिब के इसमें आया हो खाते में। ये कुरैश को क्या भी मिला नहीं, उनके तीर में क्या भी निकला नहीं, खाली। तो मतलब
قریش کے لوگ جو حصہ جتانے کے واسطے آ رہے تھے ان کو کیا ابھی نہیں ملا, خالی ان اب ملا سے کسے, عبد المطلب کو اور کعبۃ اللہ کو. عبد المطلب کیا کرے, سننے کے جو 2 ہرنا ملے تھے تو کعبۃ اللہ کے نام پہ ہے وہ, اور اپنے کو جو زرہ وغیرہ ملی تھی اسے بیچے انہوں, بیچ کو کیا کرے, کعبۃ اللہ کا اچھا دروازہ بنا کے چھوڑے. کعبۃ اللہ کا دروازہ بنا کو اس کے دروازے کے پاس جو 2 ہرنا آتے نہیں سننے کے, وہاں اسے گڑا کو چھوڑے انہوں. تو ہسٹری میں سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے دروازے کو سننا لگانے والے, سننے کا استعمال کرنے والے عبد المطلب. تو اس طریقے سے معاملہ جو ہے حل ہوا ہے. زمزم کا پانی بھی ملا اور خزانہ بھی ان کے پاس آیا. انہوں کیا کرے, کعبۃ اللہ کے واسطے, دروازے کے واسطے وقف کر دیے. تو یہ عبد المطلب کے زندگی کا ایک بڑا واقعہ. کئی سالوں سے جو ہے زمزم کا پانی اور زمزم کا کنواں اس کا عطا پتہ نہیں تھا. عبد المطلب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے, انہوں جو ہے زمزم کے پانی کو پھر دوبارہ جو ہے شروع کریں. الحمدللہ آج تک بھی ہے کہ نہیں ہے زمزم کا پانی, ہے نہیں. عمرہ کرنے والے, حج کرنے والے اور نہیں گئے سالے بھی, ان کو گئے سالے لکاک دیتی پانی پیتے کہ نہیں. اور زمزم کے پانی کے بارے میں تم نے بولا تھا اس سے پہلے, کیا بولا تھا بولو. زمزم کا پانی ایسا پانی ہے کہ وہ بھوک کو بھی مٹاتا, پیاس کو بھی مٹاتا. زمزم کا پانی اس سے پہلے بولا تھا میں, زمزم کا پانی کیا کرتا, بھوک کو بھی مٹاتا, پیاس کو بھی مٹاتا. صحیح حدیث ہے, بخاری یا مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ انہوں کیا بولتی, میں 1 مہینہ 40 دن تک, کتنے دن ہوا, 1 مہینہ 40 دن, کتنے دن ہوا, 2 مہینے, کریکٹ 2 مہینے ہوا, 10 دن زیادہ ہے نا, 70 دن, کتنے دن, 70 دن تک میں خالی زمزم کے پانی سے زندگی گزارا. مجھے بھوکش لگی نہیں, کھانا سے نہیں کھاتا تھا, خالی زمزم زمزم زمزم, بھوکش نہیں لگتی. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ خود بولتے, وہ زمزم کے پانی پینے سے 70 دن پیاس میں میرا پیٹ اگ آیا, ذرا موٹا ہوا میں کر بولتے. ویسا پانی زمزم کا. اور سعودی عرب کے ایک عالم ہے, انہوں اپنے ایک لیکچر میں بولے تھے کہ ایک آدمی 5 دن تک کعبۃ اللہ میں سے رہا گئے تھے, کہتے ہیں نا 5 دن تک کھایا بھی نہیں پیا بھی نہیں. اب ریسنٹ بات ہے, 5 دن تک خالی زمزم کا پانی پیتا رہا گئے تھے, اسے بھوکی سے لگی نہیں گئے تھے اور پیاس بھی نہیں لگی. تو مطلب کیا, زمزم کا پانی پیاس بھی مٹاتا اور بھوک بھی مٹاتا. اس کے واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ماء زمزم لما شرب لہ, زمزم کا پانی جس نیت سے تم پیتے ہو اللہ وہ نیت پوری کرتا ہے. شرط ہے کہ وہ نیت قرآن اور حدیث کے مطابق رہنا. میں جاگ درگاہ میں جاگ 2 نارلا پھوڑتوں بول وہ نیت سی جو ہے یہ پانی پیے گا تو اس کا زمزم کا پانی ہوتا کیا بھی نہیں ہوتا, الٹا غلطی ہوتا پھر وہ. تو بہرحال عبد المطلب کی زندگی میں ایک بڑا کام کیا ہوگا, تو زمزم کا پانی دوبارہ شروع کرے. اور دوسرا کام کیا ہوا, میں بولا تھا نہیں, انہوں نیت کرے تھے, بول کو کیا نیت کرے تھے, 10 بیٹے اگر اللہ دیا گا تو میں 1 بیٹے کو قربان کر دوں. بعض محدثین کیا بولتی ہیں کہ یہ واقعہ ضعیف ہے, لیکن یہ بات پکی ہے. کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بولتے تھے, میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں, میں 2 ذبیحوں کا بیٹا, ایک اسماعیل علیہ السلام ان کو بھی ذبح کر رہے تھے, اور دوسرا خود ان کے ابا حضرت عبداللہ ان کو بھی ذبح کر رہے تھے. اس کے واسطے میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بولتی, اور یہ صحیح حدیث, صحیح بات. تو اب کیا ہوتا, اللہ تعالیٰ ان کو 10 بیٹے دیتا. عبد المطلب کتنے بیٹے دیتا, 10 بیٹے دیتا. اور 10 بیٹے دیا, اس کے بعد انہوں کیا کرنے والے انشاءاللہ اگلے جمعہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو صحیح معنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سن کر, پڑھ کر, آخری سانس تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.